अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, और आज के वीलॉग में खुश आमदीद। आज के वीलॉग में हम जा रहे हैं कोपनहेगन सिटी का टूर लगाने के लिए। तो हम अपने वीवर को साथ साथ अपने यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में भी बताते जाएंगे। ये हमारी लोकल बस आ गई है और अब हमारे सफ़र का आगाज़ जो है कोपनहेगन की तरफ हो गया है। और इस वक्त हम अपना जो लोकल रेलवे स्टेशन है उसके प्लेटफॉर्म पे हैं। और मेरे कार्ड में चूँकि लोड थोड़ा कम था तो मैं उसको रीलोड करने लगा हूँ। तो ये देखें जनाब, हमारे इर्द गिर्द का व्यू, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द का व्यू। तो 2 से 3 मिनट का इंतज़ार है, हमारी ट्रेन आने में 2 से 3 मिनट रहते हैं। तो ये एक ट्रेन थी जो नॉन स्टॉप ट्रेन थी, तो ये गुज़र गई। उसके बाद जो है ये हमारी ट्रेन आ रही है। तो इस व्लॉग में हम आपको साथ साथ यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो फिर हम कोपनहेगन के कुछ जो मशहूर मकामात हैं, कुछ प्लेसेस हैं, फिर उनका भी जो है ना हम विज़िट करेंगे साथ साथ। तो ये हमारी ट्रेन जो है एक स्टेशन पर रुकी थी, ये वहाँ की पार्किंग है। जी वीवर्स, तो ये एक बहुत बड़ा मैदान है और इस मैदान में 20 से 25 फ़ुटबॉल की टीमें जो हैं बैक वक्त मैच खेल सकती हैं। और फ़ुटबॉल ही यहाँ की फेवरेट गेम है और छुट्टी के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर फ़ुटबॉल खेलने आते हैं। तो ट्रेन दोबारा चल पड़ी है। तो एक से ज़्यादा जो है ट्रैक जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ये उन ट्रेनों के लिए हैं जो दूसरे मुल्कों से आती हैं और या जहाँ से दूसरे मुल्कों को जाने वाली ट्रेनों के ट्रैक हैं। तो हम तकरीबन मेन जंक्शन, कोपनहेगन के मेन जंक्शन के पास पहुंच चुके हैं। तो ये यहाँ पर वो ट्रेनें खड़ी हैं जो कि अपने सफ़र के इख्तिताम के बाद सर्विस के लिए यहाँ छोड़ दी जाती हैं, ताकि ये दोबारा से सफ़र करने के लिए इनको तैयार किया जा सके, यानी कि इनकी सफाई वगैरह या जो भी इन्होंने फिल अप करना होता है। तो
کوپن ہیگن کی جو بلڈنگوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، یہ دیکھیں، اور کچھ ابھی یہ زیر تعمیر بلڈنگیں بھی ہیں۔ یہ دیکھیں ایک بلٹ ٹرین کھڑی ہے، تو ہماری ٹرین جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور اب ہم کوپن ہیگن سے پہلے ایک اسٹیشن ہے اس پہ کھڑے ہیں، اور ٹرین انتظار کر رہی ہے ایک فری پلیٹ فارم کا، اور جیسے ہی اس کو گرین سگنل ملے گا تو پھر ہم کوپن ہیگن اسٹیشن پہ پہنچ جائیں گے۔ تو جی جناب، ٹرین کو گرین سگنل مل چکا ہے اور ہم تھوڑی ہی دیر میں کوپن ہیگن اسٹیشن پہ پہنچنے والے ہیں۔ جی جناب، تو ہم ٹرین سے نکل کر اب ہم جو کوپن ہیگن اسٹیشن کی مین بلڈنگ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جی ویورس، تو اب ہم اسٹیشن کے اوپر والے حصے میں آ گئے ہیں۔ یہ اسٹیشن جو ہے کافی پرانا بلڈ ہوا ہے، اور اس کی عمارت جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، اور یہاں پر آپ جب بھی آئیں گے آپ کو بہت زیادہ رونق، بہت زیادہ لوگ ملیں گے۔ یہاں سے پورے یورپ کو جو ہے وہ ٹرینیں جاتی ہیں، اور وہاں سے یہاں ٹرین جو ہیں ان کی یہ مین جنکشن ہے، تو یہاں سے ہر ملک کو ٹرینیں ملیں گی جانے کے لیے، جہاں بھی آپ نے جانا ہو یورپ کے اندر۔ تو اب ہم اسٹیشن کی بلڈنگ سے باہر آ گئے ہیں مین روڈ پہ، اور یہ ہمارے سامنے ایک پارک ہے مین، جس کا نام ہے ٹیوولی۔ یہ بھی بڑا ہی خوبصورت پارک ہے، اور یہ ہے جی کوپن ہیگن اسٹیشن کی مین بلڈنگ، مین گیٹ اس کا، مین انٹرنس۔ تو یہ دیکھیں یہاں کی ٹریفک، یہاں کا ٹریفک کا سسٹم، بس کا سسٹم۔ تو اب ہم جو ہے آگے بڑھتے ہوئے یہ ٹاؤن ہال کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ کوپن ہیگن سٹی کا سینٹر ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ٹیوالی کا دوسرا گیٹ ہے۔ تو جب کبھی موقع ملا تو اس ٹیوالی کے بارے میں بھی ایک ویلاگ ضرور بنائیں گے اپنے ناظرین کے لیے۔ تو جی جناب، ہم آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں ٹاؤن ہال کی طرف۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا گلاس ورک ہوا ہے، یعنی کہ بلڈنگ کے چاروں طرف انہوں نے ایک گلاس کا فریم بنا کے لگایا ہوا ہے۔ جی جناب، تو اب ہم آگے ہیں، ہمارے سامنے جو بلڈنگ ہے یہ کوپن ہیگن ٹاؤن ہال کی بلڈنگ ہے، یعنی کہ جو میئر ہے کوپن ہیگن کا، اس کی بلڈنگ ہے یہ۔ تو یہاں پر بھی بہت ہی زیادہ رونق ہوتی ہے، جب بھی آئیں یہاں آپ کو بہت زیادہ لوگ ملیں گے، ٹورسٹ بہت زیادہ ملیں گے، اور آج عام دن ہے، لوگ کاموں وغیرہ پہ جا رہے ہیں، اور کچھ ٹورسٹ وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ادھر۔ تو یہ جناب مین بلڈنگ کے سامنے سے فوٹوگرافی، اور یہاں پر یہ کبوتر وغیرہ جو ہیں یہ یہاں کا ایک خاص سمبل ہے، نشانی ہے۔ یہاں پر تقریباً ہر وقت آپ کو یہ کبوتر جو ہیں ملیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے آگے ایک مین سٹریٹ ہے۔ تو یہ اب ہم بس میں سوار ہو کر ایک دوسرے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، جہاں سے ہم نے میٹرو لینی ہے۔
तो मैं अभी इस बस से उतरा हूँ और अब हम जो है मेट्रो का जो स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये मेट्रो के लिए लिफ्ट बनी हुई है और यहाँ ये जो मेट्रो है ये अंडरग्राउंड है और ये तकरीबन 100 से 150 मीटर जो है ये ज़मीन से गहराई में है। मैंने लिफ्ट इस्तेमाल की है। अब मैं थोड़ा सा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो वो हमारे सामने जो नज़र आ रहा है वो प्लेटफॉर्म है और ये है जी जनाब डेनमार्क की मेट्रो ट्रेन। ये देखें, मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ कि हम कितना नीचे हैं ज़मीन पे, ज़मीन की सतह से। और ये देखें जनाब मेट्रो के अंदर हूँ मैं और ये मेट्रो ट्रेन का फ्रंट ग्लास है। मेट्रो चल पड़ी है और देख लें यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं है, यानी कि ये एक कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल होती है और आईटी सिस्टम के ज़रिए इसका जो भी है सारा जो है निज़ाम चलता है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल फ्रंट ग्लास के सामने खड़ा हूँ और ट्रेन जो है अपनी रफ्तार से रवां दवां है बग़ैर किसी ड्राइवर के। और ये जनाब हम मेट्रो ट्रेन से बाहर आ गए और अब हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे। तो उसके बाद जो है आगे हम कुछ एक दो और जगह हैं जिनका तो मेट्रो ट्रेन से निकलने के बाद हम जो हमारा वीलॉग है हम इसको एक बोट में बैठकर बनाएंगे और ये बोट जो है तकरीबन समुंदर में 1 घंटे का जो है चक्कर लगाएगी और इसमें हम कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ के मशहूर प्लेसेस हैं और उनके बारे में कुछ कहानियाँ वगैरह भी किताबों में लिखी गई हैं। तो यहाँ ये एक खूबसूरत छोटा सा उन्होंने गार्डन बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ ज़रा रुक गया। तो अब हम जा रहे हैं उस बोर्ड की तरफ जिसमें हमने बैठ के यहाँ चक्कर लगाना है। तो टिकट वगैरह ले ली है और अभी बोट को चलने में 2 या 3 मिनट रहते हैं। तो उसके बाद जो है हम 1 घंटा जो है इस बोट के अंदर रहेंगे और वीलॉग जो है साथ साथ बनता रहेगा। ये हमारे से पहले वाली बोट है, ये अभी चक्कर लगा के ही है। हमारी बोट जो है रिवर्स हो रही है ताकि दूसरी बोट जो है उसको जगह मिल सके। तो ये ने जनाब हमारी जो बोट है उसने अपने टूर का आगाज़ कर दिया है और ये जो बोट थी ये अब वापस आई है। अभी टूर लगा के ये अब वहाँ साथ लगेगी और लोग जो हैं उतर जाएंगे और फिर दूसरे लोग बैठेंगे। तो ऐसे ही हम साथ साथ वीलॉग बनाते जाएंगे और साथ आपको बताते जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो इस बोट के अंदर ज़्यादातर जो हैं वो टूरिस्ट बैठे होते हैं, मकामी लोग भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। तो हम भी कभी कभार जो है इस बोट का टूर लगाने के लिए बच्चों के साथ आते हैं। और
इस टूर में एक गाइड होती है जो टूरिस्ट को पूरे राउंड के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह देती है, और जो जो चीज़ हम विज़िट करेंगे उसके बारे में वो गाइड करती है। तो जनाब ये अभी एक ब्रिज आया है, बहुत ही डाउन सा ब्रिज है, और हमारी बोट इसके नीचे से गुज़र रही है। तो ये ले जनाब, देखें ये भी इस पूरे राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा कश्तियाँ आपको खड़ी नज़र आएंगी, क्योंकि ये पानी के ऊपर लोग जो हैं समर जब होता है तो ये यहाँ पर ज़्यादातर जो है एंजॉय करने के लिए इन्होंने कश्तियाँ रखी होती हैं, और यहीं पर आकर सारा दिन जो है एंजॉय करते हैं। और ये कश्तियाँ इनकी जो हैं यहीं पे रहती हैं सारा साल। देखिए जनाब, हमारी जो बोट है उसकी स्पीड अब तेज़ हो गई है। तो अब ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है सामने, इसका नाम है ओपरा थिएटर, यानी कि इसमें ओपरा कंसर्ट होते हैं, ओपरा सॉन्ग्स वगैरह जो गाए जाते हैं। और शायद सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये थिएटर जो है ये पानी के ऊपर ही बनाया उन्होंने। पहले समंदर था, और अब क्या नाम है, पीछे आबादी है दूसरी साइड पे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने एक तो ख़ूबसूरती के लिए जो है इसको समंदर के किनारे पे बनाया है, और दूसरा ये जो है ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही पुरकशिश पॉइंट है। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट जो आकर थिएटर वगैरह एंजॉय करते हैं। ये इसका क्लोज व्यू है। ये कैमरे में तो शायद इतना खूबसूरत ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन हकीकत में जब इसको देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो ये जनाब हम इसको विज़िट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हम मज़ीद समंदर के अंदर जाएंगे। ये ऊपर से स्काई व्यू भी देख लें, और ये साथ साथ कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं। अब जो हमारी बोट है उसकी स्पीड जो है मज़ीद तेज़ हो गई है। तो अब हम आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। ये जो इनका बहरी बेड़ा था उसकी जानिब। हाँ जी, तो ये देखें व्यूअर्स, ये है इनका एक बहुत ही पुराना बहरी बेड़ा है, बहरी जहाज़, जंगी जहाज़। और ये है जनाब सी बस। ये जो है ये पैसेंजर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सी बसेस। क्योंकि ये रास्ता शार्ट पड़ता है तो इसलिए सी बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही सी बसेस जो हैं वो पैसेंजर्स को लेकर ओपरा हाउस में, ओपरा थिएटर हाउस में भी जाती हैं।
तो ये देखें ऊपर से आसमान और समंदर का व्यू, और ये देखें एक जहाज़ पानी के ऊपर तैरता हुआ। जी जनाब, तो ये है जल परी जिसको कहते हैं। इसका ज़िक्र कहानियों में मिलता है। एच क्रिस्टन एंडरसन ने इसके बारे में एक किताब में जल परी का ज़िक्र किया हुआ है, और इस जल परी के बारे में ये था कि ये पानी से शाम को निकल कर ऊपर आती थी, तो ये यहाँ के शहज़ादों के साथ मिला करती थी। तो एक दिन जो है एक जलपरी जो है उसका प्रिंस जो है वो ना आया, तो वो उसके इंतज़ार में वहाँ बैठी हुई थी, और वो बैठी बैठी पत्थर हो गई। और इसी चीज़ को उन्होंने एक मेमोरी की तरह एक स्टेचू बनाकर जलपरी का उन्होंने वहाँ लगा दिया है। और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट पॉइंट है डेनमार्क का। तो इसलिए इस मुल्क को जलपरी का देश भी कहते हैं। और तो ये जनाब एक शाही बिल्डिंग थी, और अब हम क्योंकि एक तरफ का टूर लगाकर अब वापस आ रहे हैं। ये देखें, ये सी बस आ रही है पैसेंजर्स को लेकर ओपेरा थिएटर के लिए, और ये यहाँ से इस पैसेंजर को उतारेगी और बाकी जो होंगे उनको लेकर वापस जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हुए आगे उन्होंने ये एक जदीद किस्म का ब्रिज बनाया हुआ है, उसको क्रॉस करते हुए जो बाकी का जो टूर है हम उसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक और ब्रिज आ गया। तो अब हम जो है वो बाकी का जो टूरिस्ट है इस बोर्ड का उसको कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही अच्छा वेदर था आज, और मुझे छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज कोपनहेगन जाकर टूर लगा कर आते हैं, तो अपने व्यूवर्स को भी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं अब बहुत ही ज़्यादा बोट्स जो हैं वो हो गई हैं जी। तो अब हम जो है बोट्स के अंदर बैठे हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखें, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत था। और मैंने इसको भी कैमरे की आँख के अंदर महफूज कर लिया। अब थोड़े से क्लाउड हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा वेदर है। मैं टी शर्ट में आया हूँ, और आप लोगों की भी लिबास वगैरह देख सकते हैं, ज़्यादातर ने टी शर्ट वगैरह पहनी हुई है। तो ये जनाब हम बोट के अंदर आगे बढ़ते हुए एक और ब्रिज, तो हमारी बोट जो है हमारे टूर के इख्तिताम की जानिब रवां दवां है। तो ये थोड़ा सा ग्रीन सीन आया था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी व्लॉग में शामिल किया जाए। और ये देखें, एक सिंगर ग्रुप है, वो बोट के ऊपर बैठकर जो है ना अपना म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं।
یہ بھی بلڈنگ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کو بلیک ڈائمنڈ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ٹین اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی بلڈنگ ہے۔ بلیک ڈائمنڈ کا ویو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہ دیکھیں جناب سمندر کے پاس جو بنی ہوئی بلڈنگیں ہیں ان کا ویو ہے، اور جو ہماری بوٹ ہے اس کی سپیڈ میں تھوڑی سی تیزی آ گئی ہے، اور یہ دیکھیں جناب دوسری جانب کا ویو، اور یہ سی بسز پیسنجر کو لاہور لے جا رہی ہیں، اور اب ہم آگے ہیں اس پل کے پاس جس کو اوپن اور کلوز کرتے ہیں۔ جب کوئی بڑا شپ آتا ہے جس کی اونچائی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو گزارنے کے لیے اس کے کچھ پٹے جو ہیں وہ اوپن کیے جاتے ہیں اور گزرنے کے بعد کلوز کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے ڈینش پارلیمنٹ ہاؤس اس کی بلڈنگ کے جانب بڑھتے ہوئے جی تو ویورز جی جو برج آ رہا ہے یہ بہت ہی ڈاؤن ہے، یعنی کہ سر بھی ٹکرا سکتا ہے نا، تو گائیڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے سروں کو نیچے رکھیں تاکہ کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے۔ تو ڈرائیور کی بڑی مہارت ہے، وہ بڑے ہی آرام سے جو ہے وہ جو شپ ہے اس کو، یعنی کہ جو بوٹ ہے اس کو آرام سے اس کے اندر سے پاس کر لیتا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جناب یہ جو ہے ڈینش پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو ہے اس کے فرنٹ کی جانب بڑھتے ہوئے جی بھی بس، تو یہ ہے ڈینش پارلیمنٹ کا کلوز ویو، اور اس کے آگے جو ہے انہوں نے اوپن ایک ایریا رکھا ہوا ہے جہاں پر لوگ پروٹیسٹ وغیرہ احتجاج وغیرہ کرتے ہیں، اور کوئی ایشو ہو تو لوگ جہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جناب میں بورڈ سے نیچے اتر آیا ہوں، اور کیونکہ مجھے وی لاگ بنانا تھا، تو اب یہ دیکھیں جناب یہاں کا ویو دیکھیں، اور یہ دیکھیں جناب اوپن بار بنی ہوئی ہیں یہاں پر۔ جی ویورس، تو یہاں پر لوگ اوپن ایئر بارز میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہوئے پہنچ گئے ہیں کوپن ہیگن کے مین بازار میں، جس کو واکنگ اسٹریٹ کہا جاتا ہے۔ جی ویورز، تو یہ دیکھیں دو سائیکل رکشاز جو کہ یہاں پر آنے والے ٹورز کو یہاں کا چکر لگوانے کے لیے یہاں پر انتظار میں رہتے ہیں، اور یہ ہے جناب واکنگ اسٹریٹ کا ویو، اور یہ دوسری جانب سے واکنگ اسٹریٹ کا ویو،
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔